my story, you'll be a bit comfortable hearing that because success stories usually make me uncomfortable, right? But my story is a bit different because I I did my 12th in Lucknow, and I had maths as a subject. I wasn't really good at it, right? I was good in biology. I still am, and I have a lot of doctors in my family. तो मुझको मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, येट आई स्टिल वेंट ऑन विद द फ्लो बिकॉज एवरी वन वॉज डूइंग इट. आजकल थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, बट एट दैट टाइम इंजीनियरिंग वॉज अ वेरी नेचुरल चॉइस, राइट, आफ्टर 12. तो एनी वे, आई in 2008-9 I started my engineering. Within 6 months, I was very disappointed. I did not really want to do it. और बाकी लोगों और मुझ में ये फ़र्क था कि normally when people don't like something, they still do it. But the problem with me is that if I don't like it, my motivation gets to a point where I don't really want to do it. So I quit, right? So within a year of starting my higher education, I quit. So then I realized that I liked political science, I liked philosophy, I liked public administration. So I did my bachelor's then in political science honors, and then I moved to law. Or being interested in public affairs, being interested in how governments run, how societies work. तो इस चीज़ में civil services was a natural choice. Anyway, I got into the civil service after a long drawn process. Because civil services may be, there's a lot of competition. And so the first time I did really well in the exam, considering it was my first attempt. So पहले attempt में I gave my mains. I missed by 2 to 3 marks. So I felt कि थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी और मेहनत करेंगे, we'll be able to crack it, right? But next year I failed in prelims, which was very unexpected. So suddenly I was, questioning my own preparation. कि यार ये पिछली बार तो I was just there, right? And now I'm quite behind. So I fell off the grid. I did not study for 2 to 3 months. I was, very depressed and stuff. कि यार क्या हो रहा है? Already 2 years had passed, right? I think I was 24 at that point. So I discussed with a lot of people. My father had a very close role to play in the whole thing. So I ditched all my preparation material, right? I started afresh. Normally what people do is that, they work harder and they build upon what is already there. But मुझे लगा कि there is something fundamentally wrong in my preparation. So I just ditched all my books and all my registers and started studying from zero. और ये सोच के कि I'll study from zero and this is the last attempt that I will give. But in that attempt, I got selected in 2016, right? So I made it through in that attempt, and my preparation was good. So I was also able to crack other exams of paramilitary forces like CAPF, of other many different exams. And then I sort of got into the civil service. I got into railways. Again, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि आप जहाँ जाएंगे उस पर आपका बहुत कंट्रोल नहीं होता है. तो railways is again a very technical organization, right? Again, engineering comes into play. But I understood that I still have the curiosity to learn, right? So I was able to learn about, different engineering streams that go into railways, how different systems operate. So वो हुआ. But then I thought about the fact that I still need to study and know more. And so I went on a trip. I was on a trip to England, and I went to Cambridge, and that is something I instantly felt attracted to. I felt like I have to be here. The atmosphere was such. तो उसके बाद फिर I started, I thought that I am quite old, right? I was almost 27, 28 at that time. तो मुझे लगा कि अब आगे पढ़ाई और करना मतलब कितना ठीक है या कैसे होगा. तो खैर, I decided to study again. So I went to Cambridge. I spent 2 years there. It was an eye-opening experience. I learned a lot about academics.
about how things are done at the highest level, जो highest level of achievement होता है, because you have brilliant people from all across the world. So after that, I came back and I've been interacting with university and school students a lot. तो इससे आपको सीखने में यही लगा कि कहाँ शुरू करा था और कहाँ पे आ गए. Right now, do I want to be in this position right now? Yes. But at 15, would I have imagined it, or would I have worked for it or wanted it? No. उस समय बिल्कुल different सोच थी. So that is the basic idea which I want you to get. Correct. That's a great journey, sir. Now, how challenging was your UPSC journey, and how did you stay motivated during your preparations? तो अच्छा, यूपीएससी के बारे में कितनों ने सोचा है या कितनों ने सोचा है कि कभी उनको यूपीएससी देना है या सिविल सर्विसेज में आना है? ओके ओके, गुड. देखो, यूपीएससी इज अगेन अ प्रिटी बिग गैम्बल फॉर मोस्ट ऑफ अस, बिकॉज आप देखेंगे कि हर साल लगभग 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, राइट? प्रीलिम्स में सिलेक्शन उन 8 से 10 लाख में लगभग 11-12 हज़ार लोगों का होता है. तो ऑलरेडी आप 1% पे आ गए. उसके बाद मेंस देते हैं वो 10-11 हज़ार लोग, उसमें से लगभग 2,500-3 हज़ार लोग इंटरव्यू की स्टेज पे आते हैं, और इंटरव्यू के बाद लगभग 800-900 लोग बच जाते हैं. उस 800-900 में भी you have different services that go into it. You may not like the service you are in. तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है, बिकॉज the odds of you clearing on paper are very low, odds of anyone clearing. और उसके बाद भी whether you will get a service of your choice, a cadre or a place of your choice, इन सब में बहुत बड़ा डाउट है. और प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि यार हज़ारों लोग पढ़ाई कर रहे हैं. इट वॉज अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज गुड इन स्टडीज़, आई ऑलवेज लाइक टू स्टडी, बट मुझे जो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट होता था वो कभी पसंद नहीं था. बहुत ही मतलब ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई किसी का ऑपरेशन होने जा रहा है या कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, वैसा लगता था. सो दैट गॉट मी वेरी नर्वस. तो लखनऊ में यहाँ के जितने भी लोग हैं, लखनऊ में देयर इज़ अ सेंटर जहाँ पे सारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, इफ़ यू गिव मेंस. तो वहाँ पे इट इज़ अ वेरी बिग सेंटर, सो यू विल हैव ऑलमोस्ट 400 to 500 पीपल कमिंग देयर टू राइट द एग्ज़ाम. और जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो एकदम से आपको वो 400-500 लोग और उनके जो परिवार वाले लोग उनको छोड़ने आए होंगे, तो वहाँ 2,000 लोगों की भीड़ आपको दिखेगी. एंड यू सडनली स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार ये मतलब मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है कि इन 2,000 लोगों में मतलब मुझे लिया जाएगा. और ये एक सेंटर है भारत में, पूरे भारत में ऐसे 50 सेंटर होंगे, राइट? तो दैट नर्वसनेस इनिशियली मेड मी मेक बिग मिस्टेक्स in my exam. My preparation was good, but in the first attempt you don't know a lot of things. आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है, all material is available to you. आप कानपुर में भी रह के you can do the best preparation. But during my time when I started off, you had to go to Delhi and get the material from Delhi. और एक सर्टेन पैटर्न और एक सर्टेन स्ट्रैटेजी से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है. सो दिस इज़ अनदर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई करना और नॉलेज गेन करना इज़ अ डिफरेंट गेम, और एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ अ वेरी डिफरेंट गेम. एग्ज़ाम क्रैक करना हमेशा स्ट्रैटेजी से होता है, हमेशा अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न एंड नॉट अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, राइट? तो ये सब समझने में ऑब्वियसली समय लगा. सेकेंड प्रीलिम्स आई फेल, लाइक आई टोल्ड यू. तो जब सेकेंड टाइम प्रीलिम्स फेल किया, उस समय ऐसा माना जाता था, अब प्रीलिम्स बहुत टफ हो गया है, उस समय माना जाता था कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो प्रीलिम्स आपका नहीं रुकना चाहिए, राइट? सो इन 2014 व्हेन आई फेल्ड प्रीलिम्स, तो वही स्टेटमेंट मेरे मन में आया कि यार सब लोग तो ये कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी है तो प्रीलिम्स रुकना नहीं चाहिए आपका, और अब प्रीलिम्स रुक गया है मेंस देने के बाद. तो मे बी आई शुड रीथिंक वेदर आई एम ऑन द राइट पाथ, या मे बी आई शुड रीथिंक. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी when things are not going well for you, you need to start afresh, right? क्योंकि कई बार गलतियां स्पॉट करना मुश्किल होता है, और हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे नोट्स बने हैं, उन्हीं नोट्स को हम बार बार पढ़ते हैं,
राइट? हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा घंटे देंगे या और ज़्यादा मेहनत से पढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है. सो आई डिच्ड ऑल माई नोट्स, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नोट्स अफ्रेश. ये देखा कि लास्ट टाइम कौन सी ऐसी किताबें थी जो नहीं पढ़ी थी, जिनको रेकमेंड किया जाता है. सो आई स्टार्टेड स्टडीइंग देम. अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी. Prelims, again I made some very silly mistakes in prelims. Prelims is all about being smart, right? So the way you be smart is that you don't overthink. If you have prepared well, there is no need to overthink. अब यूपीएससी रोज नए तरीके निकालता है आपको कंफ्यूज करने के. और मुझे अभी भी याद है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, शायद आप सब लोगों को, और वो क्वेश्चन सोचिए अगर 16 साल तक मैं नहीं भूला हूँ तो 16 नहीं, सॉरी 10 साल में नहीं भूला हूँ तो कितनी बड़ी गलती होगी. सो देयर वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू विल, अ लॉट ऑफ यू विल थिंक कि लगता है सर ने पढ़ाई ठीक से नहीं करी थी इसलिए वो नहीं कर पाए, बट ऐसा नहीं है. तो द क्वेश्चन वाज H1N1 वायरस जो होता है, ठीक है, दैट लीड्स टू व्हाट डिजीज, राइट? दैट वाज द क्वेश्चन. आई एम supposedly very good at biology, right? It was a very simple answer, swine flu. और बाद में मुझे स्वाइन फ्लू हुआ भी एक साल बाद. ठीक है, स्वाइन फ्लू मैंने टिक कर दिया. आई शुड हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट मैंने सोचा बाकी जो ऑप्शन थे, यूपीएससी कभी ऐसे ऑप्शन नहीं देता है जो कि बिल्कुल ही एक जगह स्वाइन फ्लू दे दे, दूसरी जगह जॉन्डिस दे दे, ऐसा नहीं होता है. दूसरे ऑप्शन थे बर्ड फ्लू, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्लूज ही थे. मैंने सोचा कि यार बर्ड फ्लू तो नहीं है, बर्ड फ्लू होता है H5N1, राइट? मैंने कहा नहीं, बर्ड फ्लू तो H5N1 है. बट थोड़ा और सोचा, यार H5N1 कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं है और H1N1 कहीं बर्ड फ्लू तो नहीं है. और ये सोचते सोचते यू नो कंफ्यूज, यू टाई योर सेल्फ अप इन नॉट्स बिकॉज यू आर नर्वस, यू डोंट वांट टू गेट रॉन्ग इन दिस. और अल्टीमेटली मैंने स्वाइन फ्लू काट के बर्ड फ्लू लगा दिया, राइट? जब मैं वापस आया, दे आर ऑल डॉक्टर्स इन माई फैमिली, राइट? और जब उन्होंने देखा मेरा पेपर, उन्होंने कहा यार ये बर्ड फ्लू पे क्यों टिक है. और अगले जब तक रिजल्ट नहीं आ गया तब तक मैं अपने आप को कोसता रहा कि यार ये क्या कर दिया वहां जाके. एंड मुझे यही लगा कि अगर मेरा, व्हेन आई काउंटेड माय मार्क्स, आई वाज, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, आई वाज अराउंड द बॉर्डर लाइन, राइट? आई कुड हैव मेड इट और कुड नॉट हैव मेड इट. तो मुझे यही लगा कि यार ये जिंदगी भर मतलब स्वाइन फ्लू मेरे मन में आता रहेगा अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ. And the cutoff was 107.33, right? My marks were around 109.5. और एक क्वेश्चन जो होता है उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 2.66 मार्क्स का होता है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है और 0.66 1/3 उसकी नेगेटिव मार्किंग है. तो अगर मेरा एक भी क्वेश्चन और गलत होता तो आई वुड बी 107, राइट? सो आई वुड नॉट हैव मेड इट. तो ये इंपॉर्टेंस है एक क्वेश्चन की, और वो एक क्वेश्चन अगर मैं सही करता तो और मैं कंफर्टेबली क्लियर करता, राइट? ये है नहीं. तो इसलिए द नर्वसनेस, द पैनिक, दैट इज व्हाट एक्चुअली लेड टू ऑल द मिस्टेक्स दैट वर बीइंग मेड. तो उसके बाद ऑब्वियसली आई डिड वेल इन मेंस, आई डिड वेल इन इंटरव्यू, आई गॉट थ्रू. बट जो लेसन है इससे वो यही है कि यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू बी स्मार्ट. You have to figure out a way to get the right strategy, and you have to figure out a way to handle pressure and handle the nervousness of exam hall. क्योंकि भारत में बहुत कंपटीशन है, बहुत बच्चे हैं और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, right? Thank you, sir. Now, sir, your exposure at international level is truly remarkable. You have worked on UK's high-speed rail project. So, what do you think? What's one thing that India can learn from it, and what's one thing India is already doing better? So the first thing which I think, not just working at the government but just being in Cambridge, which I think that India and Indians should learn, is respect for their own time and the time of others. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भारत में किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो आपको टाइम क्या बताया जाता है और फंक्शन कब शुरू होता है, राइट? In fact, I would say that Indian schools are doing a very good job. I usually think that schools, follow their time
you know they count the seconds and minutes, पता नहीं क्या होता है स्कूल के बाद या स्कूल एटमॉस्फेयर के बाहर भारत में समय की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही हिला हुआ है और वो हमारे प्रोफेशन में भी रहता है. सो आई हैड दिस प्रॉब्लम व्हेन आई गॉट इनटू द सिविल सर्विस. तो कभी भी कोई मीटिंग होती थी कि भाई 9 बजे मीटिंग है, 10 बजे मीटिंग है, आई वुड गो देयर एंड नोबडी वाज देयर, राइट, लिटरली नोबडी वाज देयर. तो अब ये आदत पड़ गई है कि व्हेनेवर यू हैव टू गो टू अ प्लेस even for a meeting or something which is very important, you send someone to first go there and tell you कि भाई वहाँ पे कोई है भी या नहीं है जाने से पहले. And that sort of reflects everywhere in the performance of your country, how your systems work, right? How your government works, how everything in your country works. So, and time is one thing, it is more about work ethics, right? So in Cambridge, whenever we had to meet our supervisor, the supervisor would send us an email, and that email had different time slots that they had available that week. And you select that time slot, your supervisor knows that you'll be there at that time, and they would also be there at that time. उसमें किसी को एक दूसरे से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है. उसको पता है कि 11:55 पे इस स्थल पे आप उससे मिलेंगे थर्सडे को, and everyone will honor that, right? So that sort of thought process is yet to be there in our country. That is very important. And उससे क्या होता है कि for example, if you look at in Indian Railways, if you don't honor that, you can land into a lot of trouble, and you will see that most of the accidents that take place, most of the attention to detail that is not there, ये सब इसीलिए है बिकॉज वी डोंट टेक डिटेल्स सीरियसली. अब सड़क बन रही है, आप जा रहे हैं, कहीं गड्ढा है तो ठीक है यार देख लेते हैं, या किसी कोई चीज़ करनी है तो वी गिव आर लाइक 60-70%, राइट. जो वर्क एथिक होता है, अगर वो वर्क एथिक नहीं है तो somebody will pay the price for it. And you see that in our country we regularly pay the price for someone else's लापरवाही, है ना. किसी ने तार ठीक से नहीं जोड़ा, हाथ लग गया, गए, nobody gives a damn, right? वो वाली चीज़ है. तो हमेशा ये सोचिए कि अच्छा भारत में अगर आप इफ़ यू पे टू मच अटेंशन टू डिटेल तो तुरंत लोग कहेंगे कि यार ये पागल है ना. ही इज़ ऑब्सेसिंग अबाउट थिंग्स दैट यार ये क्या छोटी छोटी चीज़ों में ऑब्सेस कर रहा है. बट that is the point, that we need to develop the work ethic, the respect for time, the respect for details in this country. So, speaking about Indian Railways, if you could change one thing in Indian Railways instantly, what would it be? So, all of you I think have traveled in trains, right? कौन ऐसा है जो ट्रेन में नहीं बैठा है? कोई नहीं है, right? So, I think the biggest thing that railway needs is a unified command structure, right? And that problem is there in a lot of departments in India, that you have different departments for everything. आप अभी ट्रेन में जैसे जाएंगे and if you raise a complaint, right? तो आप you will notice that आप complaint किसी को raise कर रहे हैं, उस चीज़ को correct करने का department किसी और का है, उस पर एक्शन या फीडबैक लेने का किसी और का है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइलोज, अ लॉट ऑफ कमिटीज़ हैव रेगुलरली गिवन दिस रिकमेंडेशन कि रेलवे में काफ़ी फ्रैक्चर्ड सॉर्ट ऑफ सिस्टम है. देयर इज़ अ लॉट दैट हैज़ बीन डन इन रेलवेज इन द पास्ट 10 years, राइट. बट जो ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स हैं दे आर नीडेड टू हैव अ सिस्टम इन विच यू हैव अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, जिसमें one person is responsible, ultimately responsible for everything, so that you can bring in more accountability, you can bring in more responsibility within your system. So that is definitely needed in railways. And if you are interested in engineering, if you are interested in infrastructure, it is a great organization for you to work in. So if anyone wants to, think about railways as a future career option, that is a great option. Right. So, beyond achievements, it's a value that shapes a true leader. What's one life lesson that has stayed with you throughout your journey? And that is
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लाइफ लेसन जो मैं आप सबको बोलूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मेरे हिसाब से जो मैंने हमेशा देखा है कि आइडियाज आर यूजलेस, राइट? आइडियाज डोंट रियली मैटर। जीवन में मैटर एक्शन करता है और इनिशिएटिव करता है। आइडियाज आर वेरी सॉर्ट ऑफ ओवर स्टेटेड। Okay. कई बार हम लोग सोचते हैं कि किसी के अंदर बहुत बड़ा आइडिया आया और उसने वो इम्प्लीमेंट किया एंड दैट बिकम्स समथिंग फॉर यू टू फॉलो। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली यू डोंट कम अप विद लाइफ चेंजिंग आइडियाज। वॉट यू कम अप विद इज समथिंग वेरी वेग इनिशियली, और आप जब कार्य करना शुरू करते हैं तो अलोंग द वे यू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, यू मेक अ लॉट ऑफ करेक्शंस। जैसे जैसे आप काम आगे करते हैं वैसे वैसे धीमे धीमे पिक्चर क्लियर होती है। तो कभी भी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वी वेट फॉर द राइट आइडिया एंड वी वेट फॉर द राइट टाइम बिफोर एक्टिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में बहुत पॉपुलेशन है और डेफिनेटली एग्जाम सिस्टम में बहुत कंपटीशन है, बट एक्चुअल लाइफ में कंपटीशन बहुत कम है इस देश में। मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल लाइफ में बहुत कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्ट ही नहीं करते हैं अपने पूरे जीवन में, वो सोचते रह जाते हैं। तो इसीलिए इफ़ यू मेक दिस हैबिट ऑफ एक्टिंग बिफोर थिंकिंग टू मच or acting before spending a lot of time on deliberating or acting before you are completely ready। कभी होता है ना कि मन में डाउट होता है कि whether we are actually ready to do something। डाउट्स को हटा के टेक द फर्स्ट स्टेप। अगर चीज़ें ठीक नहीं जाती यू कैन ऑलवेज कम बैक, राइट? तो माई वन बिग लाइफ लेसन हैज बिन कि यार कर्म सबसे पहले करो। कर्म योगी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ज़्यादा सोचने में, ज़्यादा डिस्कशन करने में, ज़्यादा आइडियाज़ मन में लाने में, इसमें समय व्यतीत करने के बजाय यू टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द इनिशिएटिव, एक्शन लो। Then once you act, you decide how things are going, whether you need course correction, whether you need to completely change what you are doing। लेकिन पहले एक्ट करिए। That's great to hear, sir. How important are leadership and decision-making skills in your role? Yeah, so my role is all about leadership and decision making, क्योंकि सिविल सर्विसेज में you always have either a lot of human resources at your command or you have a lot of responsibilities that directly affect people, right? So for example, if a train gets late, तो हर ट्रेन में लगभग 1500 से 2000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो लगभग 1500 से 2000 लोगों का जो शेड्यूल है, कल उनको कहीं पहुंचना है, दे आर ईदर गोइंग फॉर लेजर और दे आर गोइंग फॉर देयर वर्क। सो देयर होल शेड्यूल एंड देयर होल नेक्स्ट कपल ऑफ डेज डिपेंड ऑन योर डिसीजन मेकिंग। और हमेशा जो लोअर ब्यूरोक्रेसी होती है भारत सरकार में स्पेसिफिकली, देयर ability to lead or their ability to take decisions is very limited। So they always look up for directions, they always look up for instructions, and if the instructions and directions are not there or they are not clear, तब तक काम नहीं होगा। और डिसीजन मेकिंग में ये भी निर्णय लेना है कि डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन। अगर लेना चाहिए तो व्हेन इज द राइट टाइम एंड द राइट मेजर इन विच यू हैव टू टेक अ डिसीजन। ऑल्सो a lot of times we suffer from a paralysis in which the other person or the leader is not taking a decision at all when decision should be taken। तो भारत में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो लीडरशिप है और आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो निर्णय ले और वो सही निर्णय ले। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल idea and the whole conclusion of your work is your ability to lead your people, your ability to take the right decisions at the right time। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट यू आर नॉट टॉट हाउ टू टेक डिसीजंस। आपको कोई नहीं बताता है कि सही निर्णय कैसे लेना है। यू लर्न इट थ्रू एक्सपीरियंस, यू लर्न इट थ्रू हिट एंड ट्रायल, थ्रू मेकिंग मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम देम। बट what you can ensure is that you don't make the same mistake twice। That is important।
is not setting. How do I set it? So, reflecting on your journey, if you could give one message to your younger self, what would it be? I would give a lot of messages to my younger self, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स और रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ें हमेशा बहुत डिफरेंट होती हैं. जब भी आप whenever you are the actor, the things that you think about are very different. और जब आप किसी चीज़ को थर्ड पर्सन के तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो यू हैव मच मोर क्लैरिटी. और जब चीज़ ऑलरेडी हो जाती है और आपको उसके कंक्लूजन्स पता हैं, उसके रैमिफिकेशंस पता हैं, तो बहुत आसान होता है तब बोलना कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ नहीं है. लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलूँगा दैट आई शुड हैव डन मोर, विच आई एम डूइंग नाउ व्हेन आई डोंट नो if those things matter or not, but I'm still doing it, is that I would spend more time trying to get more knowledge and more understanding of different things. एक मैंने जो पहले एग्जाम्पल दिया था, when I was, अब इसमें you can blame my teachers or you can blame me, I don't know what's the truth, but when I grew up I got very interested in, for example, astronomy, right? Very interested in how the universe works, very interested in physics. और ये सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने थी जब मैं 10th में था, 11th में था, but somehow I never paid attention to it that way. And now when I think back, I think that if I would have paid more attention to it, तो उस समय मैं उस स्थिति में था, maybe I could have made a career out of it. Or if I would have taken biology, for example, right? आज भी I am able to study a lot when it comes to biology or medicine, just out of hobby, understanding different diseases, understanding, जैसे recently I've been studying a lot on oncology, right? So studying, how cancer works, studying different research papers on it, just as a hobby, right? और अब मुझे लगता है कि यार if I have the ability to understand this, if I have the interest to go through all this material, if I would have explored it when I was in 11th, or if I would have explored it when I was in 12th, शायद मैं एक बहुत ही अच्छा कैंसर सर्जन बन सकता था, right? So, but still, gaining knowledge is an end in itself, right? It is not necessarily a means to an end. और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो नॉलेज की एक्सेस है और इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है वो और ईजी होती जा रही है. सो आई वुड डेफिनेटली टेल यू, डू नॉट बिकम, जैसे मैंने पहले बोला, डू नॉट बिकम रिजिड एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट थिंग्स एंड सी कि यार मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि नहीं. और अगर इंटरेस्ट है तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू योर सिलेबस, जस्ट रीड मोर एंड मोर अबाउट इट. You can have great conversations with AI right now, right? So say if you are interested in particle physics, right? Just start discussing it with ChatGPT. Put forth your knowledge, ask questions to the AI model. वो respond करेगा. Then you pick things. You will learn a lot, right? आपके classroom, and that is a problem with teachers today, because and the teaching profession has to sort of reinvent, because a lot of that information and knowledge the students can get it on their own effort as well. So teachers have to decide how they can make the classroom more interesting and how they can make the classroom more and more relevant. So anyway, for you I would definitely say that try to gain more and more knowledge, वरना आप आगे चले जाओगे, समय बीतता जाएगा and you will get stuck in a profession, in your family life, in your future, and maybe you won't get an opportunity to learn those things. So, this is something every student here is eager to hear. Many students feel UPSC is just for toppers. What would you like to say to them? मैं तो यही कहूँगा कि यूपीएससी ही भारत में एक ऐसा एग्जाम है जो टॉपर्स के लिए नहीं है, राइट? क्योंकि बाकी एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो आपकी बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट करता है, राइट? यहाँ पे कई जेई के एस्पिरेंट्स होंगे,
फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, नाम अलग अलग हैं, बट द बेसिस ऑफ अप्रोचिंग दीज सब्जेक्ट्स इज सेम, राइट? You need analytical skills, you need skills of data interpretation, you need numerical skills. तो उसमें आपको you have to be in the top 1 percentile of this country to make it. अगर आप नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप अपने स्कूल के टॉप 1 परसेंटाइल में नहीं हैं तो यू हैव टू रियली थिंक अबाउट वेदर यू कैन बी इन द टॉप 1 परसेंटाइल ऑफ दिस कंट्री. तो दुनिया में कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें ऐसी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है जो कि स्किल्स आपकी 8th 9th 10th तक आके सॉलिडिफाई हो जाती है. उसके बाद यू कैन मेक 10 to 15% इम्प्रूवमेंट ऑन इट. बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके क्लास में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम से जेई में 95% 99% लोगों में आ जाएंगे. ऐसा नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड this. I am not discouraging you, but I want you to have a realistic view of your life, right? I don't want you to end up in a place जहाँ पे आप effort तो सब कर रहे हैं but you are not getting results out of it. So you have to understand it. But UPSC क्या है? UPSC में पहली बात तो most of us start off with a clean slate, right? आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, GS तो एक जनरल चीज़ है, आप उसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं. ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कभी भी आप 1 साल पढ़ के महारत हासिल कर सकते हैं, राइट? यू हैव जनरल स्टडीज़, यू हैव वन सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं. अगर आप मैथ्स और फिजिक्स लेना चाहें, वेल एंड गुड. इफ़ यू वांट बॉटनी एंड zoology, वेल एंड गुड. इंटरव्यू है, इंटरव्यू टेस्ट योर पर्सनैलिटी, उसमें टॉपर की कोई बात नहीं है. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है टॉपर वाला. और मैं आपको बताऊँ, आई हैव सीन स्टूडेंट्स who have been toppers failing at UPSC. I have seen students who were, including myself, who were average or above average in school doing very well in UPSC. उसका कारण ये है कि UPSC में सक्सेस आपके बैकग्राउंड पे नहीं डिपेंड करती है, आपके पास्ट पे डिपेंड नहीं करती है, आपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है इस पे डिपेंड नहीं करती है. वो डिपेंड करती है कि आपने जो प्रीसीडिंग 2 years हैं उसमें आपने कैसी तपस्या करी है, आपने कैसे डिसिप्लिन्ड और स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करी है. देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी, देयर इज़ अ स्मार्ट वे टू क्लियर UPSC एंड इफ़ यू कैन फॉलो इट, कोई भी स्टूडेंट, मतलब बॉटम, आपके स्कूल में आपके क्लास में जो बॉटम 10 है ना, यू विल सी दीज एग्जाम्पल्स. लेट मी टेल यू, अ लॉट ऑफ अस राइट पीपल ऑफ इन स्कूल. ऐसा हमेशा होता है कि यार ये बच्चे अच्छा करेंगे, ये तो नहीं करेंगे, और 10 साल बाद आप एकदम से देखते हैं यार वो कहाँ पहुँच गया है ना, और आपकी एक्सपेक्टेशन जिससे थी यार उससे तो कुछ हो नहीं पाया. उसका कारण यही है कि असली गेम तो स्कूल के बाद शुरू होता है. अभी तो सिर्फ नेट प्रैक्टिस चल रही है, राइट? अभी सिर्फ नेट प्रैक्टिस चल रही है. बट नेट प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट? ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं, अदरवाइज टीचर्स विल टेल मी कि अब क्लास शुरू हुआ तो बच्चे सुन नहीं रहे हैं, कह रहे हैं ये तो मैडम नेट प्रैक्टिस है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं ये भी बताता हूँ कि स्कूल क्यों इम्पॉर्टेंट है. स्कूल में 2 स्किल्स हैं जो आपकी सॉलिडिफाई होंगी. यू विल नॉट बी एबल टू चेंज देम एवर. अंडरस्टैंड दिस. जैसे हम लोग जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए GRE और GMAT देते हैं, राइट? तो GRE और GMAT में क्या हम लोग करते हैं कि सबसे पहले वी गिव द एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन. 340 नंबर का होता है. तो वंस यू गिव द एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन यू गेट योर बेसलाइन स्कोर. मान लीजिए 340 में 300 आए आपके. आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए, दिन रात लगा दीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव योर स्कोर बाय मोर देन 10 to 15%, क्योंकि उसमें वो स्किल्स टेस्ट की जा रही हैं जो 8th 9th 10th में सॉलिडिफाई हो चुकी हैं. आपके जो न्यूरॉन्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर यंग, योर न्यूरॉन्स, द सेल्स इन योर ब्रेन, they multiply. After a time they stop multiplying. So if you want to learn a new language, it is very easy to learn a new language when you are young, right? As you grow older becomes very difficult. If you want to learn a new skill, a new musical instrument, very easy to do it as a 5-year-old, 6-year-old, 8-year-old, 10-year-old. 18 के बाद मुश्किल होता जाता है. 30 के बाद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं सीख पाएंगे आप.
because that is your biology, that is your neural network. It does not work that way, right? So there are two skills that solidify when you are in school और उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है. First is your quantitative skill, right? The ability to work with numbers. And the second is your comprehension skills, your ability to work with words, understanding how words are structured, how sentences, how paragraphs are structured, how can you make sense of what is written. ये दो चीज़ें अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ एवरी सब्जेक्ट, एवरी प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड. तो यहाँ पे अगर आपने ये दो स्किल्स अच्छे से कर ली, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी a nuclear physicist, you can be a civil servant, you can be anything. So these are the two things you should work on. Make sure you are good in quantitative aptitude, make sure you are able to understand what you are reading very well, you are able to work with words, manipulate sentences, make good sentences, write well, understand numbers. ये सारी चीज़ों पे फोकस होना चाहिए. बाकी आपको फैक्ट्स आते हैं कि नहीं, पता है कि नहीं, दे आर टेम्पररी. आज नहीं तो कल भूल जाना है. तो एग्जाम के पहले यू कैन ऑलवेज लर्न देम, और जैसे फ्यूचर में एग्जाम्स हो रहे हैं, योर मेमोराइजिंग स्किल्स बिकम लेस एंड लेस इम्पॉर्टेंट, राइट? Sir, is it necessary to study 10-12 hours daily to crack UPSC, or smart study is more important? So I always think that hours don't, they also matter and they don't matter at all. उसका कारण ये है कि आवर्स मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि आप समय किसी चीज़ को देंगे तभी कुछ हो पाएगा. यू हैव टू गिव टाइम टू समथिंग. दे डोंट मैटर बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपका मन कहीं और लगा हो. ठीक है, किताब तो सामने है लेकिन सोच कुछ और रहे हैं. पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन समझ कुछ आ नहीं रहा है. तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वेदर यू आर एबल टू reproduce what you have studied. आउटकम इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने एंशियंट हिस्ट्री से शुरू किया एंड यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. आपने पढ़ लिया, राइट? यू हैव स्टडीड इट वंस, यू हैव रिवाइज्ड इट. नाउ कैन यू हैव a good discussion with a historian about Indus Valley civilization? Can you have a meaningful discussion with them or not? Number one. If I ask you simple questions about Indus Valley civilizations, are you able to answer them or not? तो अपनी प्रोग्रेस आपको ऐसे जज करनी है. मैंने 10 घंटे दिए या 12 घंटे दिए, ऐसे जज नहीं करनी है. लेकिन हाँ, 1-2 घंटे की पढ़ाई से नहीं हो पाता है, बिकॉज आप पढ़ने बैठे हो तो ह्यूमनली पॉसिबल जो है कि आप कितने समय में एक पन्ना पढ़ोगे, तो यू विल हैव टू गिव टाइम. व्हाट आई हैव सीन दैट नॉर्मली 6 to 8 hours इज द स्वीट स्पॉट फॉर अ गुड स्टूडेंट एवरी डे. और वो 6 to 8 hours ऑब्वियसली एट अ स्ट्रेच नहीं होते हैं. नॉर्मली 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा एट अ स्ट्रेच आप नहीं पढ़ सकते हैं. 1.5 से 2 घंटा इज मतलब बहुत ही फोकस्ड है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ 1.5 से 2 घंटा. और आजकल फ़ोन के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इंस्टाग्राम है, कई चीज़ें हैं, वो सब चल ही रही हैं, है ना? तो मतलब हम सब लोग भी डिस्ट्रैक्टेड ही हैं. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फोकस. तो इसीलिए आउटकम, जैसे ही मैंने पढ़ा कोई चीज़, जस्ट लुक एट वेदर यू आर एबल टू आंसर और नॉट. अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं मतलब नहीं हुआ काम. So, what is one habit students should build from today if they are aiming for UPSC? Yeah, so not just UPSC, but if you are aiming for anything, one advice क्योंकि मुझे लगती है कि आप सबको करनी चाहिए, is start writing, right? Writing का मतलब है maintain a diary of yours in which you write things about your target, about what you have to achieve, what your daily progress should be. देखिए क्या होता है कि जो कार्टेशियन मेथड है, राइट, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव समथिंग और इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, सबसे पहले क्या है, यू हैव टू क्वांटिफाई इट, राइट. नंबर 1 इज क्वांटिफिकेशन, कि हमको करना क्या है. दूसरा, क्वांटिफाई कर लिया, अब आपको मार्ग तय करना है. मार्ग तय करने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, राइट. इफ़ यू हैव अ सिलेबस टू कवर, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स. डिवाइड करने के बाद you have to understand
कि मेरे पास कितना समय है और मैं उस समय में हाउ कैन आई स्प्रेड इट अक्रॉस एंड हाउ डज दिस फिट इनटू माय अदर रूटीन, राइट? मुझे स्कूल जाना है, मे बी आई हैव टू गो टू प्ले, मे बी आई हैव टू स्पेंड टाइम विद माय पेरेंट्स, विद माय सिबलिंग्स. इन सब के बीच में डिसाइड हाउ यू विल फिक्स योर टाइमलाइन. उसके बाद वंस यू हैव फिक्स्ड इट, एट द एंड ऑफ द डे just sit, या at the end of the week just sit and see whether you have actually followed it or not. आपने कितना फॉलो किया है, कितना बचा रह गया है, क्या शॉर्टफॉल है, इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल हाउ यू विल रिकवर इट. तो इससे आप बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ेंगे रादर देन एक बहुत ही वेग सा आइडिया कि हम पढ़ रहे हैं, हमको पता नहीं कितना समय है, क्या कर रहे हैं. इससे आपको एक बहुत क्लियर पाथवे मिलेगा टू एक्चुअली do things. I've seen that it works brilliantly whatever you have to do in life. अभी स्कूल में भी you can do it. UPSC is a much later thing. स्कूल में you can start doing it in your graduation. It is very important to do well in your graduation. 10th और 12th के मार्क्स शायद मैटर नहीं करते हैं, but in your grad school they do matter. So start doing it, right? You have to be focused. Otherwise, it is very easy to get sidetracked in life today. Sir, can you give one challenge to our students of Yugam International School so they can start following from today? Are you ready for the challenge, students? Yeah, so the challenge is, by the end this weekend, just go and start your journal जो मैं अभी बोल रहा था, right? Get a diary, या जिसमें plain paper. Normally get a diary which is not the calendar type of diary, right? Get a journal which has plain papers. आपके बोर्ड्स हो सकते हैं, आपके एग्जाम्स हो सकते हैं. राइट थिंग्स डाउन, राइट? इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, व्हाटएवर मे बी योर टारगेट्स ऑफ अचीवमेंट, राइट इट डाउन. जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो वो चीज़ इट इज़ लाइक रजिस्टरिंग और मेकिंग एन इनफॉर्मल कमिटमेंट टू इट, राइट? यू हैव मेड अ कमिटमेंट टू इट, इट इज़ नाउ ऑन पेपर. और आप जितने भी महान लोगों को देखेंगे ना, आजकल लोग शायद नहीं करते हैं, एंड डू इट ऑन पेन एंड पेपर, राइट? डोंट मेक एन ऑनलाइन जर्नल. तो आप देखेंगे कि जितने भी महान लोगों को देखिए, there is always a diary that they leave behind, right? You can actually see that they used to document things, they used to write. So write things down on it and then you will understand कि यार काफ़ी फोकस आ रहा है लाइफ में. मुझे पता है कि इस हफ्ते मुझे क्या करना है, राइट? मुझको कैसे, हाउ टू आई पेस माई स्टडीज. अदरवाइज इट इज़ very easy to get sidetracked, especially in your age, when I know and I think elders should understand that you are going through a lot, right? You are teens, you are going through a lot. There are a lot of changes that are happening. You are more emotional than those who are elder, right? You are biologically not able to think logically and rationally, let us put it that way. And I think teachers should understand, parents should understand, because जो ब्रेन में एक इमोशनल सेंटर होता है वो जल्दी ग्रो करता है, राइट? योर लॉजिकल एंड रैशनल सेंटर ग्रोज मच लेटर आफ्टर यू आर 18. तो एक और बात समझना, अभी कई चीज़ों के लिए जब आप बहुत इमोशनल फील करते हो ना, तो बस अपने आप को ये बोलना यार दिस इज़ टेम्पररी, आई विल ग्रो आउट ऑफ इट, राइट? ज़्यादातर चीज़ें जो स्कूल में होती हैं ना, दे डोंट रियली, योर फ्रेंडशिप्स विल लास्ट, राइट? बट जो अभी टेम्पररी चीज़ें हो रही हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये सब लास्ट नहीं करते हैं. एंड 10 years फ्रॉम नाउ दे विल नॉट मैटर एट ऑल. तो कभी भी अगर लगे दैट यू आर गेटिंग इमोशनल और यू आर सैड, यू डोंट फील what is happening is right, just think that it is very temporary, it is not going to matter. तो इसलिए now is the time to become logical and rational. और लॉजिकल और रैशनल बनने के लिए get a diary, write down your goals, right, and follow them, chase them and make yourself accountable. Accountability बहुत important है और आप ही खुद को accountable कर सकते हैं. टीचर्स नहीं कर सकते आपको. टीचर्स के पास there are 40-45 students, there is only limited attention that a teacher can give you, right? Even the best of your teachers. So it is your responsibility. You have a responsibility to yourself and your family, right, to make it right. This is one life, एक ही जीवन मिला है, फिर से मौका पता नहीं मिलता है कि नहीं, I don't know, right? So this is the only chance that you have. So just write it down and follow it and make yourself accountable. Thank you.
That was truly insightful, sir. Your journey has filled us with inspiration and curiosity. So now we move on to the most exciting part of today's session, the interaction. Now, we would like to open the floor for questions. Students, you may now come forward and ask your questions to sir.